Hey guys, welcome to the third tutorial for the upcoming UGC NET exam to be held in the month of June 2020, and we are discussing about paper number 1. I've already uploaded 2 tutorials and I'm getting good response, so without further ado, let's get started with the third one. So till now I have covered in the teaching aptitude, I've done unit number 1, which talked about teacher as a whole. Second unit talked about learner as a whole, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया which is called individual differences. So today I'll finish that, and then I'm going to touch up with the fourth unit. Fourth unit talks about a lot of things which we will just start. So in the unit number 2, the topic that we had covered till now is learner कौन होता है, learner के characteristics क्या होते हैं. फिर हमने सब characteristics को 4 categories में बांटा था. Those categories were academics. तो एक लर्नर का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, क्या वो फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है, फुल मार्क्स लाता है, कम मार्क्स लाता है, वो सब आ गया था एकेडमिक में. सेकेंड ऑप्शन जो हमने किया था दैट वाज कॉग्निटिव. कॉग्निटिव में हमने क्या किया था कि बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, व्हाट इज़ अ मेंटल लेवल, व्हाट इज़ अ थॉट प्रोसेस. तो वो सब चीज़ें किस में आ गई हमारी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में. थर्ड वाज पर्सनल. इन पर्सनल वी टॉक्ड अबाउट द एज, द जेंडर, द फैमिली, बच्चे का गुस्सा कितना आता है, बच्चा कितना he is in a position to adjust to the environment, whatever the personal attributes of any learner are, वो सारे के सारे features को हम personal characteristic में डाल देते हैं. And the last one was social. In social we talk about the social background of a learner, that whether the person belongs to a business family or somebody from the army background, and what is the social setup in which the learner sits, stands, play around, all these things. तो हम ये already कर चुके हैं. Now with this topic there's one thing which is very clear, that every learner has a different background, every learner's characteristic is different. So you and I, we may have the same academic characteristic, we might be good at learning, we might be good at memorizing stuff, but our social characteristic might be totally different. That you belong to a business family, I belong to somebody, a family where everybody's into professions, everybody's an academician, right? So there can be a lot of similarities, but at the same time there are bound to be dissimilarities also. Here I introduce the last topic of unit number 2, which is individual differences. So this topic is very simple. It says whether it be a teacher or the student or the learner or the pupil, these 3 terms if you remember, so they are bound to be individual differences despite a lot of similarities. Okay, अभी जो individual differences होते हैं किस किस तरीके के होते हैं, again those same characteristics. कॉग्निटिव लेवल पे भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, एकेडमिक लेवल पे भी हो सकते हैं, पर्सनल लेवल पर भी हो सकते हैं, सोशल लेवल पर भी हो सकते हैं. ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट आपको असेस करेगा देखने के लिए कि क्या आप अपने स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करने के लिए केपेबल हैं. Not just acknowledgement, are you able to deal with it, are you able to devise new strategies to ensure कि हर आपका स्टूडेंट जो कि individually different है, they are able to understand to your lectures, right? So basically this is why this very topic is a part of your course. Now what you should know is, the last thing that you should know about individual differences is what are the reasons that somebody has individual differences. Very simple, we've been doing it in science and otherwise. There are primarily 2 major reasons that why people are different, individuals are different. One is hereditary and another one is environment based. Hereditary, same, science में पढ़ा है, how a child is born, you've got X chromosome and Y chromosome, and then accordingly a girl or a boy. तो जब ये chromosome आते हैं उसमें कुछ DNA information आती है. So these are certain information, certain characteristics which you inherit from your parents, from your mother, father, and there are certain characteristics which your parents might have inherited from their parents, right? So those characteristics, those features, those qualities, or probably the negative stuff that we get from our parents, from the family, through DNA and the chromosome, that is called hereditary. The other one is environment based. Environment is basically all those characteristics जो आप birth के बाद acquire करते हो. So hereditary, it is something that you're getting by birth. You've got no control over it. आप पैदा हुए, आपकी शक्ल आपकी मम्मी से मिलती है. You did not have any control over it. आप एक rich family में पैदा हुए, so you are automatically rich. You inherited the richness. Similarly, your father or your grandfather was a big academician. He was a genius. So you also have those genius वाला quality. So this is something you've inherited. Another one is environment based. इसमें क्या होता है, पैदा होने के बाद अपने सराउंडिंग से आप जो चीज़ें सीख रहे हो, from
family, friends, school, when you go out to work, whatever you watch on TV, whichever songs you listen to, ये सब चीज़ें आपको जो सिखाती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बिल्ड करते हो, वो सब क्या हो जाते हैं आपके इन्वायरमेंट बेस्ड। अब हमें दोनों के एडवांटेजेस पता होने चाहिए, दोनों के डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। हेरिडिटरी के एडवांटेजेस ये होते हैं दैट इफ़ यू हैव इनहेरिटेड सम क्वालिटीज़ विच आर पॉजिटिव इन योर पेरेंट्स और पॉजिटिव इन योर ग्रैंड पेरेंट्स, देन दिस इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई जीनियस रहा है, आपके घर में लोग इंटेलिजेंट रहे हैं, आपके घर में लोग बोर्न विद सम स्पेशल टैलेंट और एक्स्ट्रा क्वालिटी, मे बी उनका टेम्परमेंट बहुत ही अच्छा है, तो वो सब चीज़ें अगर आप इनहेरिट करते हो देन यू कैन टर्न आउट टू बी अ गुड लर्नर। एनवायरनमेंट में क्या होता है, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आप एक अच्छे स्कूल में पढ़े हो, आप एक अच्छी फैमिली में हो जहाँ पे सब लोग पॉजिटिव बात करते हैं, जहाँ पे लोग शांत रहते हैं, आपका सोसाइटी ऐसी वेर एवरीबडी इज़ वेरी मच डिसिप्लिन, देन यू ऑल्सो अक्वायर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सिमिलरली जैसे ये पॉजिटिव चीज़ों को आप बाय बर्थ अक्वायर करते हो या सोसाइटी से अक्वायर करते हो, एनवायरनमेंट से, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। ओके, so this is what you should know, that individual differences are bound to occur because everybody has a different cognitive level, academic level, social and personal, and the primary two reasons for these individual differences is one, by birth, by nature, that is hereditary, and something that you acquire after the time that you're born. These are called environmental. Now with this we are through with unit number 2 also. Now today we'll be starting with unit number 4. Third unit I'm going to pick up after this. Now in the fourth unit, what exactly we're going to be doing? So the fourth unit talks about your methods of teaching in institutions of higher learning. Higher learning के institutions कौन से होते हैं? So we're not talking about schools here, we're talking about colleges here. So where you're doing your graduation or post graduation or your doctorate from, so these are all the institutions of higher education. तो वहाँ पे क्या क्या methods employ किए जाते हैं पढ़ाने के लिए, so that we'll be covering in this particular unit. Primarily यहाँ पे 3 चीज़ें हमें करनी है. First thing is, 2 तरीके के जो टीचिंग मैथडोलॉजीज़ हायर इंस्टीट्यूशंस में होती है, एक होती है टीचर सेंटर्ड, एक होती है लर्नर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। एक हम दोनों को करेंगे कंपैरेटिव स्टडी। सेकंड हम करेंगे ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन द वे वी डूइंग एंड ऑफलाइन क्लासेस, दोनों को समझेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। द थर्ड थिंग दैट वी विल डू इज 3 types of programs which government has introduced to help the students in higher learning. Okay, so 1 teacher centered, learner centered, second online, offline, and third 3 programs introduced by the government. This is what we're going to cover in unit number 4. So let's get started. The first topic is teacher centered and student centered. The very name suggests teacher centered का मतलब क्या हो गया, वो पढ़ाने का तरीका which is solely focusing upon the teacher, where teacher is the center of the attraction. So it's like a classroom. टीचर आया क्लास में, टीचर ने आके अपना लेक्चर देना शुरू किया, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की उस वक्त मनोस्थिति क्या है, क्या बच्चे पढ़ने के मूड में हैं, एक्सक्यूज़ मी, अगर आप पढ़ा भी रहे हैं तो क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या बच्चों को आप क्वेश्चन करने की लिबर्टी दे रहे हो, क्या बच्चों से आप फीडबैक ले रहे हो, ये सब कौन डिसाइड करेगा? टीचर डिसाइड करेगा। सो बेसिकली वो एनवायरनमेंट टीचिंग का, वेयर टीचर हैज़ गॉट ऑल द अथॉरिटी, इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप सॉर्ट ऑफ अ मेथड. Teacher has got all the authority in terms of what to teach, when to teach, how much cost to be covered, how the student should be listening, what should be the mode of teaching, क्या हमें ऑनलाइन करना है, प्रोजेक्टर यूज़ करना है, ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, वाइट बोर्ड यूज़ करना है, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ना है, डिस्कशन करना है, इंटरेक्शन करना है, एवरीथिंग बेसिकली टीचर्स डिसाइड. सो दिस इज़ द टीचर सेंटर्ड मोड. ऑपोजिट अगर हम देखें स्टूडेंट सेंटर्ड. स्टूडेंट सेंटर्ड क्या होता है? जहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट होता है. अब इस पर क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथडोलॉजी में हु इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हु इज़ द मेजर सेंटर ऑफ फोकस. ऑप्शन आगे टीचर है या स्टूडेंट है, टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? सिर्फ आप स्टूडेंट वाला ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे, यू विल चूज़ वेयर द सेंटर ऑफ फोकस इज बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट. येस एग्जैक्टली. तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में सारा फोकस जो है वो टीचर क्या होता है, लेकिन जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है उसमें जो फोकस है वो स्टूडेंट टीचर दोनों पे होता है.
Why? Simple logic that, no teaching is possible without the teacher. So you cannot just say that, teacher is totally out of the purview and the whole focus is on the student. Of course, you're focusing a lot on the student, but at the same time, you being the teacher, you have to be the center of attraction also, while student is also there. So both teacher and the learner and the student, they are both the center of focus, center of attraction. अब इस पढ़ाई में क्या होता है? It's like a two-way process. So here the teacher is also giving the lecture, but the student is also in a position to ask question, to give the feedback, to interact as such, right? Teacher centered में क्या होता है? Teacher is on the higher pedestal, student is on a lower pedestal. However, in the student-centered one, teacher and student, they both are on the same pedestal. So it is sort of an equity-based. It's like a give and take thing, right? अब हम इंटरैक्शन की बात करें तो टीचर सेंटर्ड में इंटरैक्शन इज मिसिंग. हाउएवर इन द स्टूडेंट सेंटर्ड इट इज़ फुल ऑफ इंटरैक्शन, इज फुल ऑफ डिस्कशन. अगर हम बात करें कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स किस में डेवलप होंगी, तो जो टीचर सेंटर्ड है इट डज नॉट एट ऑल कॉन्ट्रीब्यूट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स. वाई? बिकॉज द स्टूडेंट इज नॉट सपोज टू स्पीक अप अनलेस द टीचर अलाउज यू, राइट? तो जब बच्चा क्लास में बोलेगा ही नहीं तो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चे की जो if the बच्चा इज इंट्रोवर्ट, तो चार लोग के आगे नहीं बोलता, तो वो जो क्वालिटी है वो डेवलप भी नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट इज़ वेरी अथॉरिटेटिव, इट इज़ वेरी टीचर सेंटर्ड. Teacher is not letting you speak. But in the other one, that is a student centered approach, I told you teacher and student, they are on the same pedestal. So here the student gets an opportunity to speak up, to give feedback, to ask questions. So here there is a probability that the communication skills of the student might also improve. So these are the major points that you should know about these two. So आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या कौन सा फीचर जो है टीचर सेंटर्ड में दिखता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड में. तो इफ़ वंस यू अंडरस्टैंड द अप्रोच यू विल बी एबल टू डू इट. एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है हम उसको अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं, और जो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है हम उसको डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं. आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक इज समथिंग वेर इन offer by the people, so wherein people are getting a chance to speak up, to bring on the platform their grievances. तो जहाँ पर बच्चा बोल पा रहा है, बच्चा भी interact कर रहा है, so it's like a participatory sort of a class. Okay, so that's what about teacher centered and the student centered. Now the next topic that you have to do is, उससे पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? पेपर में कैसे मैच का कॉलम आ सकता है, तो आप मुझे बताना कि कौन सी चीज़ किस में होती है. तो ये बेसिकली जो मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ, सो आई वेंट थ्रू फ्यू क्वेश्चन पेपर्स, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द नेट, एंड दैट इज़ हाउ आई टुक दीज पॉइंट्स आउट. तो स्टूडेंट वर्क अलोन, टीचर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड, किस में जो बच्चा है वो अपने आप काम करता है, अकेला काम करना पड़ता है? आंसर इज टीचर सेंटर्ड. वाई? क्योंकि टीचर अथॉरिटेटिव है, टीचर ने आपको बोला आप ये काम करो. अब टीचर आपको इतना लेवरेज दे ही नहीं रही कि आप बच्चे से इंटरैक्ट करो या किसी से आप डिस्कस करो, तो बच्चे को क्या करना पड़ता है? अकेले, ऑन हिज और हर ओन द बच्चा हैज़ टू डू इट, सो इट हैज़ टू बी अलोन. नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग. टीचर की मॉनिटरिंग ज़्यादा किस में होती है? इमेजिन करो, एक में टीचर जो है बोल रही है, सब बच्चों को सुनना है, टीचर सेंटर्ड. स्टूडेंट और टीचर दोनों बराबर है, स्टूडेंट सेंटर्ड, तो उसमें बातचीत भी होगी, डिस्कशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि टीचर खुद ही डिस्कशन में आए तो टीचर को इतना मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब टीचर सेंटर्ड है तो टीचर विल मॉनिटर कि हर बच्चा उसकी बात सुने. तो ज़्यादा मॉनिटरिंग किस में होती है? ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है टीचर सेंटर्ड में. टॉपिक की चॉइस कहाँ पे होती है? टॉपिक की चॉइस ऑफकोर्स स्टूडेंट सेंटर, क्योंकि स्टूडेंट उसमें बोल पा रहा है, तो स्टूडेंट बोल सकता है कि मैम आज ये नहीं, आज ये करते हैं, अच्छा मैम इसके बारे में भी पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव अ से इन डिसाइडिंग विच टॉपिक आर वी गोइंग टू डिस्कस. बट आपको सिंपल इतना दिमाग में रखना है, टीचर सेंटर्ड में हर चीज़ जो है टीचर डिसाइड करेगा, सारा कंट्रोल भी टीचर ही करेगा. बच्चा बोलेगा नहीं, क्लास क्वाइट होगी, क्लास में डिस्कशंस नहीं होगी, क्लास कायोटिक नहीं होगी. लेकिन स्टूडेंट सेंटर में क्या है? बच्चा बोलेगा भी, बच्चा डिस्कस भी करेगा, कभी कभी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, कभी कभी क्लास कायोटिक भी हो सकती है, क्योंकि टीचर की मॉनिटरिंग कम है, टीचर खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों के साथ, राइट? लेकिन बच्चों का कॉन्फिडेंस भी तो उसी में डेवलप होता है. So this is about teacher centered and student centered. Now the next topic is online and offline. अब हम इसको समझते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ एन ऑफलाइन वन. तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं.
प्लेस एंड टाइम। वो मोड ऑफ टीचिंग, वो मोड ऑफ गिविंग क्लासेस और लेक्चर्स जहाँ पर टाइम और प्लेस का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो क्या हो गई क्लासेस ऑनलाइन। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ प्लेस आप कहीं और बैठे, मैं कहीं और बैठी हूँ, मे बी हमारा टाइम डिफरेंस हो सकता है। दिस इज़ द टाइम मैं अभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं अपलोड करूँगी, फिर आप उसको कल देखें, परसों देखें, आज रात को देखें, तो हमारा टाइम भी डिफरेंट हो सकता है। तो हमारे टाइम और प्लेस में प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस नहीं है। तो ये क्या हो गया ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन में क्या होता है, टाइम और प्लेस में प्रॉक्सिमिटी होती है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, पास, क्योंकि उस टाइम पे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट साथ में एक ही जगह पे बैठे होते हैं। सो द ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग जो इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, ट्यूशन में गए, सामने टीचर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ ऑनलाइन नहीं है, इट्स कॉल्ड ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या है, wherein the teacher is somewhere else, the student is somewhere else, they might be at a different time zone। वो अलग समय पे उसने अपना रिकॉर्ड किया, अलग समय पे उसने लेक्चर दिया और स्टूडेंट अलग समय पे सुन रहा है। तो प्लेस एंड टाइम की प्रॉक्सिमिटी नहीं है ऑनलाइन में, प्लेस और टाइम की प्रॉक्सिमिटी है ऑफलाइन में। दूसरा क्या हो जाएगा, हम साथ साथ समझ रहे हैं, साथ साथ हमारा डिफरेंस भी हो जाएगा, ताकि हमें अलग से ना करना पड़े, बिकॉज दीज आर वेरी ईजी टॉपिक्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। The second difference would be in the offline one, it is called the traditional mode, because that's how we've been studying or teaching all these years। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, दोनों टीचर स्टूडेंट रूबरू होके रहते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, इट इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल वन, इट इज़ अ मॉडर्न वन। मॉडर्न बिकॉज हमारी गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया, सो दैट्स अ ट्रेडिशनल प्रोसेस, इट इज़ अ मॉडर्नाइज प्रोसेस बेस्ड ऑन द डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, राइट। तीसरा आप बोल सकते हो कि जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में जो बच्चे लेक्चर ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एट द सेम टाइम डिलीवर किया जा रहा है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दे दिया कि भैया टाइम की प्रॉक्सिमिटी नहीं होती, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, जिस टाइम टीचर पढ़ा रहे हैं उसी वक्त बच्चे को सुनना पड़ता है, बिकॉज बच्चा डज नॉट हैव दी ऑप्शन कि भैया मेरा भी मूड नहीं है सर, आप बाद में दोबारा लेक्चर देना। नो, आपके फिक्स्ड आवर्स होते हैं। जब आप स्कूल जाते हो, जब आप ट्यूशन जा रहे हो, जब आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, जब गॉट फिक्स्ड आवर्स, 1 घंटे की क्लास है, आपको तभी सुनना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शन है कि आप बाद में देख सकते हैं, राइट। इसका एक और डिफरेंस होता है कि ऑनलाइन में यू हैव एन ऑप्शन टू वॉच अ पर्टिकुलर वीडियो ए लाइव क्लास ओवर एंड अगेन। तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, या वो अगर ट्यूटोरियल की फॉर्म में है तो आप उसको ऑलरेडी सेव कर सकते हो और आप उसको बाद में कभी भी और कितनी बार देख सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में एक बार जो लेक्चर डिलीवर हो गया, सो इट्स गॉन। देन इफ़ यू नॉट हर्ड इट, इफ़ यू नॉट पेड प्रॉपर अटेंशन, देन द लेक्चर इज़ लॉस्ट। ओके, दैट्स व्हाट यू शुड नो। उसके अलावा एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन के लिए क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और ऑफलाइन के लिए क्या टूल्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम ऑफलाइन की बात करें, जब मैं अब इमेजिन करो आप एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपको बेसिकली क्या टूल्स चाहिए होते हैं। बेसिकली आपको टीचर चाहिए और एक आपको स्टूडेंट चाहिए। उसके अलावा डिपेंड करता है वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको टूल चाहिए। इट कुड बी अ ब्लैक बोर्ड, इट कुड बी अ वाइट बोर्ड, जो आजकल टीचर्स पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर भी होता है, आजकल स्मार्ट क्लासेस भी होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दोज थिंग्स आपको वो सब चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि टीचर स्टूडेंट एट द सेम टाइम प्रेजेंट हो। व्हाट इज़ नीडेड इज़ यू शुड हैव इंटरनेट ऑफ कोर्स, एंड देन यू शुड ऑल्सो हैव अ सिस्टम। इट कुड बी अ कंप्यूटर, इंटरनेट तो चल रहा है, देखोगे कहाँ पे, यू नीड टू हैव अ डिवाइस। सो इट कुड बी कंप्यूटर, इफ़ नॉट कंप्यूटर इट कुड बी अ मोबाइल डिवाइस, योर मोबाइल फ़ोन, और इट कुड बी अ लैपटॉप, मे बी एन आईपैड। ओके, यूजुअली जब आप किसी बुक को पढ़ोगे, कोई डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा होगा इंटरनेट एंड कंप्यूटर आर द 2 थिंग्स विच यू रिक्वायर फॉर दी ऑनलाइन क्लास। बट कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर के अलावा ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिवाइसेस। लाइक आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो, आई एम गिविंग दिस ऑनलाइन क्लास नॉट यूजिंग द लैपटॉप बट माई मोबाइल डिवाइस, माई मोबाइल phone। So that ways it could be computer, it could be laptop, it could be iPad, it could be your mobile phone also। So this is about it। Now you should know दोनों का advantages and disadvantages also। What are the advantages of online? That you can watch the tutorials, the classes later on, आप उसको बाद में भी access कर सकते हो। ऑफलाइन में क्या होता है, ये डिसएडवांटेज है कि आपको उसी वक्त सुनना पड़ता है। तो अगर आप लेट हो गए, आपने क्लास मिस कर दी, या आपका अटेंशन नहीं था, यू वर डाइवर्टेड समवेयर एल्स, तो आपका वो मिस हो गया।
दूसरा ऑनलाइन का बेनिफिट क्या होता है कि जो लोग बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है, वो लोग नहीं है जा सकते स्कूल में या कॉलेज में, तो घर बैठे इंटरनेट की मदद से बहुत सारे कंटेंट को, हाई क्वालिटी कंटेंट को पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आपको यूजुअली पैसे देने पड़ते हैं। ऑफकोर्स बहुत कम लोग हैं जो कि फ्री में स्कूल चला रहे हैं या कॉलेजेस चला रहे हैं और अच्छी एजुकेशन भी दे रहे हैं, राइट। तो ऑफलाइन में यू यूजुअली हैव टू pay, you have to take admission, you have to get enrolled, and then only you get access to high quality material. But in online it's very easy, like YouTube पे you can find numerous videos, otherwise also आप online website check कर सकते हो, videos check कर सकते हो। So this is like better quality, better options, lesser rate और in fact cheap। आपके पास बस internet connectivity होनी चाहिए, you can have access to various tutorials, videos, content etc। ये तो हो गया उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज। और अगर हम ऑफलाइन के एडवांटेजेस देखें तो ट्रेडिशनल मेथड है, सामने टीचर आपके ऊपर ही होता है, तो आप अटेंशन फोकस ज़्यादा होता है। सो ऑफलाइन जो है इसमें यूजुअली मोर अटेंशन एंड फोकस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बिकॉज टीचर है सामने, तो बच्चे को पता है कि टीचर जो है मुझे देख रहा है, तो मैं बातचीत नहीं कर सकता, तो बच्चे ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरा वीडियो देख रहे हो, साथ साथ आप खा रहे हो, लाइक आई ऑल्सो हैव ऑप्शन, मैं भी खा सकती हूँ। तो आप कुछ खा रहे हो, आप कुछ पी रहे हो, सडनली कोई आ गया, आप डिस्टर्ब हो गए, तो लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। यू मे नॉट वॉच ऑनलाइन वीडियोज़ और ट्यूटोरियल सो सीरियसली एज यू विल डू इट इन ऑफलाइन, क्योंकि वहाँ पे टीचर है एक डंडा लेके आपको डांटने के लिए, पीटने के लिए, ओके। सो इट्स लाइक बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमें या तो ऑनलाइन पे रिजॉर्ट करना चाहिए ऑफलाइन। आई थिंक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो बोथ शुड गो साइमल्टेनियसली। यू कैन नॉट जस्ट से दैट आई प्रेफर ओनली ऑफलाइन और just online. So I think both have its advantages or disadvantages, so you should go with both. Okay, now the next topic in this unit is, I told you, the third thing is the government introduced programs. So here we have three things that we have to cover. One is Swayam, second is Swayam Prabha, and third is MOOC, that's MOOC. So if you've not heard about these terms before, let me just help you with that. पहले हम स्वयं और स्वयं प्रभा का एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बिकॉज द इंट्रोडक्शन इज कॉमन, लिटिल बिट ऑफ इट। उसके बाद जो दोनों में अलग अलग चीज़ें वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब ये दोनों हैं केड़ी चीज़ें। स्वयं का मतलब होता है खुद से। तो 2017 में, क्योंकि हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, सो दे हैव ऑलवेज बिन शाउटिंग अबाउट डिजिटल इंडिया एंड एवरीथिंग, हर चीज़ जो है डिजिटलाइज हो जानी चाहिए। तो 2017 में 9 जुलाई जब प्रणब मुखर्जी वॉज द प्रेसिडेंट, गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो हमारी सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया। उसमें एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें ये था कि घर बैठे जो बच्चे सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं, दोज हु आर poor, those who are probably handicapped, those who are not able to go out and attend to the classes, or they cannot get enrolled in different courses, या वो लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं, मे बी काम कर रहे हैं, या मे बी स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं या कॉलेज के ड्रॉप आउट्स हैं, घर की कोई जिम्मेदारी पड़ गई, मतलब फॉर एनी रीज़न वो स्कूल कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वो घर बैठे ही कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। घर बैठे ही वो क्लासेस की एक्सेस ले सकते हैं, उन्हें नोट्स मिल जाएंगे बाय बेस्ट ऑफ द फैकल्टी इन द कंट्री, राइट। तो उसके लिए उन्होंने एक डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया। उसमें जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था वो 4 प्रोग्राम्स थे। पहला था स्वयं, दूसरा था स्वयं प्रभा, तीसरा था NAD, फोर्थ था NDL। अब ये NAD